Assalamu alaikum, I'm Lord Wajid Khan. I just want to say a huge thank you to Raja Najabat Saab and his full team at Jammu and Kashmir Self-Determination Movement International. Your selflessness, your tireless efforts, and your commitment and dedication is hugely appreciated for the Kashmir cause. I want to thank you in particular for the work you're doing in recognizing and acknowledging and appreciating the Kashmiri martyrs, those people that gave their lives for the Kashmir cause, those people that fought hard to ensure that Kashmiris have the right to self-determinate and for also the human rights abuses to stop in Kashmir. I want to just single out Ashraf Serai Sahib, who recently lost his life in custody, and both his sons have subsequently been arrested. We need to ensure that people in Kashmir live in peace and harmony, just like we do in this part of the world. So these efforts are hugely welcome, and let's keep fighting for the cause. Let's keep raising our voices. Let's keep the pressure on, because we need an absolute determination for the future of Kashmiris. But also we need peace in the region. We need peace between India and Pakistan. But that will not happen until Kashmiris are part of the dialogue or at the center stage at the table. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा कि मैं कॉन्फ्रेंस के शुरू में यहाँ मौजूद नहीं था, चूँकि मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी कोविड-19 के दूसरे टीके के हवाले से, तो अभी दूसरा टीका लगवा करके आए हैं। लेट्स होप कि ये हमें कोविड-19 के खिलाफ प्रोटेक्ट करेगा। तो कश्मीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जैसा कि हमारी दानिश में ये चीज़ रोज़ाना अपडेट होती रहती है, कश्मीर के अंदर भारतीय जो काबिल अफवाज हैं वो रोज़ाना कोई ना कोई बहाना तलाश करके लोगों को घरों की तलाशी लेती हैं, उनके घरों को ब्लास्ट करती हैं, नौजवानों को पकड़ दकड़ करते हैं या उनको कत्ल करते हैं और उनको दहशतगर्द करार देते हैं। इसके अलावा भी जहाँ तक हमारे सियासी कैदियों का ताल्लुक है, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन हिंदुस्तान में। और बड़ा ख़तरा ये है कि ये अगर जेलों में भी चली गई तो हमारे जो कैदी हैं उनको यानी उनके लिए जान को मज़ीद ख़तरा हो सकता है। और अशरफ सहराई साहब की ये शहादत के बाद तो ये चीज़ और भी सामने आ गई है कि हमारे कैदियों को वहाँ जो तिबी सहूलतें हैं वो भी पूरे तरीके से नहीं दी जाती हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम मिलकर के मकबूजा कश्मीर के जितने भी सियासी कैदी हैं उनकी राही के लिए एक बैनुल-अक़वामी सतह पे मुहिम चलाई जाए। और अगर इसके लिए तमाम कैदियों का डेटा जो है और जिस हद तक मुमकिन हो सके हमें कैदियों का डेटा वो शेयर करें ताकि हम बैनुल-अक़वामी सतह पर इस चीज़ को जो है वो उजागर करने की कोशिश करें और कैदियों की राही के लिए इंडियन गवर्नमेंट पे दबाव डालें। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी अर्जेंट सिचुएशन है जिसके लिए हमें काम करने की अशद ज़रूरत है और मैं इसके चीज़ के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। I wish to commend the Jammu and Kashmir Self-Determination Movement International led by Raja Najabat Hussain Saab for taking this initiative to pay tributes to the martyrs of occupied Kashmir, Mir Waiz Umar Farooq Sahib, Abdul Ghani Lone Shahid Saab, and the latest in the long list of martyrs of occupied Kashmir, Muhammad Ashraf Serai Sahib, who was murdered in custody and whose two sons have been picked up recently while the family was still in a state of mourning. The blood that has been shed by the martyrs in occupied Kashmir while braving the bayonets and bullets of the Indian occupation army will not go in vain, because the struggle of the Kashmiri people for self-determination, according to UN resolutions, is picking momentum against the Modi regime, which is now on the back foot, which is now on the defensive, because no amount of repression can cow down the indomitable spirit, the determination,
and the fighting spirit of the Kashmiri people. And we can see this happening also in Palestine, where there has been resistance to Israeli occupation, and Israel has lost politically also, diplomatically also, media-wise also, and morally also in the recent conflict in Assalamu alaikum, I'm Andrew Gwynn MP, Chair of Labour Friends of Kashmir, and I want to send my solidarity to the Kashmiri nation on this commemoration of Kashmiri martyrs. I want to pay a special tribute to Raja Najabat Hussain, the chairman of Jammu Kashmir Self-Determination Movement International, for all the work that he and his organisation do in the United Kingdom and across the world to raise awareness of the tragedy that is Kashmir. And whilst we're thinking about the Kashmiri people and those that have lost their lives in the pursuit of freedom over the last 7 decades, I think we need to reassert the international view that the right to self-determination is a basic human right, and that we call on all sides, from Pakistan, from India, and from Kashmir itself, because no decision can be made by others about Kashmir without the Kashmiri people's consent, to come together, to talk about peace and to seek a better future without war, without hostility, and without the human rights abuses that we've seen over the past 7 decades. So let's ensure that as an international community we do all we can to ensure that the voice of the Kashmiri people are heard across the globe, and one day, hopefully very soon, inshallah, there will be peace and prosperity in Kashmir. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफजल खान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर मैनचेस्टर गोटन और शैडो डिप्टी लीडर। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राजा नजाबत साहब का और उनकी तंजीम जम्मू कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट इंटरनेशनल, जिन्होंने बहुत ही अच्छी आज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की हुई थी। मुझे अफसोस है कि मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सका। उसकी बुनियादी वजह तो कश्मीर के साथ जो हमारा दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है फ़लस्तीन का, वो पिछले 11-12 दिन से जो जुल्म हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पे हो रहा है और उसकी जो अर्जेंसी थी सीज़फायर के हवाले से उस पे काम हो रहा है, और हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि अल्टीमेटली सीज़फायर के इमीडिएटली साथ भी जो रूट कोज इशू है ऑक्यूपेशन का, फ़लस्तीन की रिकग्निशन का, उस पे अब काम को रिडबल किया जाए, वरना ये साइकिल ऑफ वायलेंस चलता रहेगा। कश्मीर और फ़लस्तीन का जो आज़ादी की तारीख़ है ये बहुत ही करीबी है और हमारे दिलों के करीब भी है, और बहुत अरसे से इन दोनों पे जुल्म हो रहा है। तो इसको सक्सेस लाना दोनों के लिए एक दूसरे के साथ तावन करना भी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। आपके सामने ये बात है कि जो प्रेशर हैं इंडिया और इज़राइल, इनके आपस में कितना तावन है। तो अगर वो बातल के लिए तावन कर सकते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आज़ादी के लिए आपस में तावन को बढ़ाएं। तो ये दोनों तारीखों को मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के साथ और ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत है, और एक दूसरे से लेसन लर्न करने की भी ज़रूरत है कि अपनी इस तारीख़ आज़ादी को कैसे और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हाल ही में हमारे अशरफ सहराई साहब जो शहीद हुए हैं जेल में, तो बहुत से इससे पहले भी शहीद हो चुके हैं, और बहुत से हमारे सियासी रहनुमा और हमारे मज़लूम कश्मीरी बहन भाई इंडिया के प्रिजन में हैं। तो क्योंकि ये जो कोविड-19 स्प्रेड इंडिया में हो रहा है, बहुत हाई लेवल पे स्प्रेड हो रहा है, तो क्योंकि वो प्रिजन में है तो उनकी जान इस पर ख़तरे में है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है इस पर भी आवाज़ को बुलंद करें कि उनको रिलीज़ होना चाहिए, और ये जो जुल्म है अल्टीमेटली ये ख़त्म होना चाहिए। पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं कि कश्मीरी जो हमारे बहन भाई हैं इन पे बहुत जुल्म हो रहा है, और इंडिया में जो गवर्नमेंट के साथ जो जुल्म है उनका वो दिन ब दिन और बढ़ रहा है। तो इस पे हमें अपने तावन को दूसरों के साथ इंटरनेशनल लेवल पे पार्लियामेंटेरियन की कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये काम हम फ़लस्तीन के लिए भी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ यही काम हमें कश्मीर के लिए भी करने की ज़रूरत है।
इंडिया इस चीज़ पे अब फेल हो चुका है। जितना जल्दी वो इसको रियलाइज़ करे उतना ही इंडिया के लिए खुद बेहतर है। इंशाल्लाह हमारी आज़ादी कामयाब होगी और हमारे कश्मीरी बहन भाई अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और अपनी आज़ादी को अचीव करेंगे। मेरी हमेशा दुआ भी आपके साथ है और मेरा 100% तावन भी आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम कॉन्फ्रेंस के शुरका से अस्सलाम वालेकुम और साथ माजरत। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी जो स्केड्यूल में पहले शामिल नहीं थी, तो उसकी वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ गया और अभी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं लाइव कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकी, लेकिन मैं अपने ख्यालात की और अपने इमोशंस की तर्जमानी के लिए मैं ये वीडियो मैसेज के ज़रिए आपके खिदमत में हाजिर हुई हूँ और शुक्रगुजार हूँ राजा नजाबत साहब की, जिन्होंने हमेशा हमें अपडेटेड रखा। जहाँ तक कश्मीर की बात है तो पिछले 1947 से लेके अब तक जो हालात रहे हैं कश्मीर के, लेकिन वो तो जो थे सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन जो 5 अगस्त 2019 से इंडियन एग्रेशन में इजाफा हुआ है और जिस तरीके से जुल्म सितम बढ़ा है और जिस तरह से 370 और 35A को रिवोक किया गया है और उसके बाद के जो हालात हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। इस सिलसिले में असेंबली में भी मैं आवाज़ उठाती रही हूँ जब भी हमें फोरम अवेलेबल हुआ है, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया, इसके अलावा जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं क्योंकि वज़ीर आज़म की तर्जुमान हूँ, स्पोक्स पर्सन हूँ, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हूँ गवर्नमेंट की, तो जब भी हमें मौका मिलता है पूरी तर्जुमानी करने की कोशिश करते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो ये कॉन्फ्रेंस है और जिस तरह हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए आप सब आवाज़ उठा रहे हैं और जिस तरीके से बामकसद इसको बना रहे हैं, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मेरी बतौर एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान, अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जो दिली जज्बात हैं और जो एफ़र्ट्स हैं, वो आप लोगों की जितनी एफ़र्ट्स हैं उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हालात की जो संगीनी जिस तरफ जा रही है, मैं समझती हूँ कि अब ज़रूरत आ गई है कि हम सब मिल के अपनी एफ़र्ट्स को इकट्ठा करें और इसी तरह के फोरम से आवाज़ उठाएं ताकि इंटरनेशनली जो ह्यूमन राइट्स की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उन तक ये राइटली पहुँचे। और जो एक हिपोक्रेसी चल रही है इंटरनेशनली मीडिया की भी और कई ऐसे फोरम्स की, ताकतवर फोरम्स की, जो इन मजलूमों की आवाज़ों को दबा देते हैं, ख़ास तौर पे इंडियन लॉबी की, उसके लिए हमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी डिवाइस करने की ज़रूरत है। मैंने इसराइल के ख़िलाफ़ भी देखा है कि जहाँ जहाँ इंडियन लॉबी बैठी हुई थी या और इंटरनेशनल जो डीप पॉकेट्स का भी जिक्र हुआ फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जिस तरह किया, वहाँ पर हमारी आवाज़ें दबा दी जाती हैं। मेरा ट्विटर का अकाउंट जो है वो ट्विटर ने बंद कर दिया। थैंक यू वेरी मच राजा नजाबत साहब, यू हैव बीन वेरी काइंड। आपने हमेशा कश्मीर कॉज के लिए काम किया है और थ्रू आउट द ईयर आप कश्मीर कॉज के लिए हर फोरम पे आवाज़ उठाते रहे हैं। यूं तो साल के तमाम दिन कश्मीर के लिए की के कॉज के लिए उनसे यादें वाबस्ता हैं। इसी तरह का एक दिन 21 मई का दिन भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक जलीलुल कदर आलिम दीन मीर वाइस मोहम्मद फारूक को उनके घर पर मुसल्लह अफराद ने 21 मई 1990 को शहीद कर दिया। उनकी शहादत का सानहा अहले कश्मीर के लिए किसी क़यामत से कम न था। लाखों लोग उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जमा हुए तो भारत ने रियासती दहशतगर्दी की इंतहा कर दी और उन्होंने इस हजूम पर बिला जवाज फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में तकरीबन 70 अफराद शहीद हो गए। इन तमाम शुहदा की रूहें आज तक आलमी इंसाफ के दर पर दस्तक दे रही हैं। इस खौफनाक सानिए के बाद हर साल अफराद शहीद हो गए। इन तमाम शुहदा की रूहें आज तक आलमी इंसाफ के दर पर दस्तक दे रही हैं।
اس خوفناک ثانیے کے بعد ہر سال یوم شہداء منایا جاتا رہا، اور 21 مئی 2002 کو بھارت نے ریاستی دہشت گردی کی پھر انتہا کر دی اور تحریک آزادی کے ایک اور رہنما عبدالغنی لون کو شہید کر دیا۔ عبدالغنی لون کا جرم کیا تھا کہ وہ سچ بولتے تھے، مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے تھے اور ظالم کو للکارتے تھے۔ وہ ایک عظیم مجاہد تھے، اپنی قوم کے ایک حقیقی نمائندے تھے اور کشمیریوں کے ایک ہر دل عزیز لیڈر تھے۔ تو آج کے دن کے حوالے سے یہ 21 مئی کا یہ دن دنیا بھر کے میڈیا، انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی اداروں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ طاقت اور جبر کے ذریعے تحریکوں کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آخری فتح حق کی ہوتی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ان عظیم شہداء کے لہو کے صدقے کشمیر مکمل طور پر آزاد ہوگا۔ وہ اس کی قیادت کرتے ہیں چودھری عظیم صاحب ہیں، وہاں جو سنی فیڈریشن آف سنی ماسکس ہے برمنگھم میں، اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ ہماری رابطہ کمیٹی کے بھی صدر ہیں۔ اسی طرح تحریک کشمیر والے ساتھی ہیں، پھر لنڈن میں ہماری کشمیری تنظیمیں ہیں، یہ سارے لوگ بھی۔ اور یہ جو آج ہم قائدین کی نہ صرف برسی منا رہے ہیں بلکہ تجدید عہد کر رہے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کی مکمل آزادی اور اس کے پاکستان کے ساتھ علاج تک یہ ہماری جدوجہد جاری و ساری رہے گی، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو، آزاد کشمیر کے اندر ہو۔